increasing and decreasing of a function. Checking increasing or decreasing of a function. How to check increasing or decreasing of a function? Pretty easy and simple topic. Increasing a function and decreasing function. Increasing and decreasing functions. Okay, we can check whether the function is increasing or decreasing. Okay, whether the function is increasing, this is increasing graph. If graph is like this, we can say that the function is decreasing. This is increasing and this is decreasing. But for deciding whether the function is increasing or decreasing, we have to collect data. We have to collect values for x1, x2, x3, means various variables and their functions. So after getting values for the variables and their functions, फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे कि कर्व कैसे दिख रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. बराबर है. तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. तो विदाउट यूजिंग ग्राफ, अगर आपको फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इन दैट केस आपको डेरिवेटिव यूज करना है. सो यूजिंग डेरिवेटिव यू कैन चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन वेरिएबल के कौन से वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग रहेगा और वेरिएबल की कौन सी वैल्यू के लिए वो डिक्रीजिंग रहेगा. ये भी आप यूजिंग दिस कंसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो. तो इतना सिंपल सा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. यूजिंग डेरिवेटिव कंसेप्ट यू हैव टू फाइंड इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो x का कौन सा, x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की कौन से वैल्यू के लिए वो इंक्रीजिंग बनेगा, वेरिएबल की कौन से वैल्यू के लिए वो डिक्रीजिंग बनेगा. और आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा या क्या ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा. तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो लेट्स प्रोसीड विद एक्सरसाइज ओनली so that you can get clear idea how to check whether the function increasing or decreasing. Okay, here in question number 1 from exercise 4.2, question number 1, test whether the following functions are increasing or decreasing. Means we have to test, we have to check whether the given functions are increasing or decreasing. That we have to check. Okay, so test whether functions are increasing or decreasing. Okay, from that number 1 they have given f of x function is given. Okay, I'll start with the function also. Okay, given f of x function, they have given x cube minus 6x square plus 12x minus 16. Okay, x belongs to real number. So this is the function and we have to check whether the function is increasing and decreasing. Very simple question. To check whether the function is increasing or decreasing, one little concept we must know, that whenever first order derivative of function is greater than 0, the function is increasing. क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे y होता तो dy by dx बोलते हैं. अब ये f of x है तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसे हम कहेंगे f dash of x. f dash of x मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x. y रहता तो क्या कहते हैं हम लोग? dy by dx. सेम है f of x का डेरिवेटिव f dash of x. ओके, तो वो जो f dash of x का वैल्यू है, if that value is always greater than 0, then you can say that the function is increasing. And if f dash of x is less than 0, means negative, then you can say that function is decreasing. Are you getting it? तो function increasing कब होगा? जब f dash of x greater than 0 होगा.
और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होता। जस्ट चेक इट आउट। So here, so therefore differentiating this function f dash of x, f dash means derivative, डेरिवेटिव करना है आपको, बराबर x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 12, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 16 का 0। इज दैट क्लियर? सिंपल डेरिवेटिव। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। अब ऐसे देखेंगे तो पता नहीं चल रहा है ना, ये पॉजिटिव है मतलब ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, नहीं पता चल रहा है, बराबर। तो इसे थोड़ा स्क्वायर टर्म में लाना पड़ेगा। स्क्वायर टर्म मींस व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते थे वैसे हमें यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर एडजस्ट करना है। तो सिंपल है, कैसे, f dash of x is equal to here 3 12 12, what is common 3 is common, बराबर है। 3 सब में कॉमन है, सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नाउ जस्ट लुक एट दैट ब्रैकेट। अब उस ब्रैकेट की तरफ देखना जरा, ये x स्क्वायर दिख रहा है, x का स्क्वायर है, मिडिल साइन माइनस है, और ये जो थर्ड टर्म दिख रहा है ना 4, वो 2 का स्क्वायर है। ओके, so if you consider x square, this is square of x, middle sign minus means root of first term, sine of middle term and root of third term। 4 का रूट कितना आएगा 2। if you consider x minus 2 square, you will get the same answer। आप देख सकते हो, you can cross verify। x minus 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो ना तो आपको यही मिलता है। समझ में आ रहा है ना? अभी मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये x माइनस 2 का स्क्वायर है, बराबर। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आइडिया आप कर सकते हो। आप रफ पेज पे जाके x माइनस 2 स्क्वायर करके देखो। मालूम है ना, फॉर्मूला याद है ना आपको, x माइनस 2 स्क्वायर कैसे करते हैं आप? ये फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? है ना फॉर्मूला? तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लीकेशन 2x डबल 2x इंटू 2 4x प्लस बी स्क्वायर। बी कौन है 2 का स्क्वायर 4, वही आएगा ना x माइनस 2 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो इफ I take 3 common, I'll get x square minus 4x plus 4, and this bracket is nothing but square of which term, x minus 2। so now I can write f dash of x is equal to 3 into x minus 2 the whole square। now 3 is a positive term। अब ये जो 3 दिख रहा है ये पॉजिटिव है ना, कहीं पे माइनस साइन है क्या? नहीं है ना, तो 3 तो पॉजिटिव है, बराबर। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट का क्या हुआ है स्क्वायर। तो किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो निगेटिव रहेगा क्या? क्योंकि x रियल नंबर है, उन्होंने बोला है। तो आप जब इस ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट निगेटिव होगा तो भी चलेगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? सो देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट हियर, देयरफॉर x minus 2 square is greater than 0 for all x belongs to real number। बराबर है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ना। x minus 2 square is always पॉजिटिव, बराबर। सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 minus 2 क्या बन जाएगा 0। ओके, सो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो x minus 2 the whole square is greater than 0 always। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, therefore x minus 2 the whole square is always positive, x not equal to 2। x minus 2 the whole square is always positive and x should not be 2। अगर x का वैल्यू 2 आएगा तो वो 0 बन जाएगा। ओके, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो देयरफॉर f dash of x is greater than 0 always, बराबर है। for all x, ये मालूम है ना, लॉजिक में पढ़ा था आपने,
for all x belongs to real number, but you cannot take 2, so minus 2. So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to real number minus 2, means सभी रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होगा, सिर्फ 2 के लिए वो 0 बन जाएगा ना, इसीलिए एक्सेप्ट 2 लिखा है वहां पे. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो फाइनली यू कैन राइट, सो देयरफॉर f of x is an greater than 0 है तो क्या होगा? increasing, is an increasing function, okay, for all x belongs to a real number minus 2. Any doubts? कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको इसमें? बहुत ही सिंपल सम. क्या किया? फंक्शन f of x डेरिवेटिव f dash of x, सबको पता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. f dash of x किया तो आपको ये मिला, बराबर. अब आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है. नहीं पता है पॉजिटिव निगेटिव, तो कंप्यूटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा. फॉर दैट हमने क्या देखा, सब में 3 कॉमन है, टेकिंग 3 कॉमन. 3 कॉमन लिया तो क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. हाँ, इफ यू वॉच केयरफुली, x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x, मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो माइनस, और थर्ड टर्म का रूट 4 का रूट कितना आता है? 2. अभी ये ऐसा है करके हमेशा नहीं, हमने क्या किया, रफ में चेक भी किया क्या कि भाई x माइनस 2 का स्क्वायर करते तो यही आता है क्या? तो हाँ, देखा हमने, क्रॉस वेरीफाई किया ना, तो x माइनस 2 का स्क्वायर यही आता है. सो 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, और एग्जाम में वो स्क्वायर ही रहेगा. अब ऐसे मत सोचो कि शायद यहाँ पे 5x आया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ब्रैकेट स्क्वायर ही देंगे. तो अब यहाँ पे ये जो 3 है ये तो पॉजिटिव है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर है, तो किसी भी ब्रैकेट का स्क्वायर करो वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है. सो x माइनस 2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 आया तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा? 0. Therefore x not equal to 2. So f dash of x is always greater than 0 for all x belongs to real number minus 2. मतलब 2 नहीं ले सकते आप. हो गया. तो अगर ये f dash of x हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, तब वो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है. So therefore f of x is an increasing function for all. ये क्या है? For all x belongs to real number minus 2. Is that clear? कोई डाउट है? Pretty simple sum. ऐसे ही जाना आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. Which one I should try? Which one should I try? Okay, let's try both. Question number 2, function is given x minus 1. Okay, just let me just change function. So question number 2, they have given f of x equal to x minus 1 upon x, x minus 1 upon x. Okay, x belongs to R, x not equal to 0, that is given. Okay, once again same steps we have to follow. Function is given f dash of x, derivative of x, what? 1. Then derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, no? Minus derivative of 1 upon x minus 1 upon x square. So finally you will get f dash of x equal to 1 plus 1 by x square. 1 plus 1 by x square. Now here no need to bring bracket square and all. यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह लाने की कोई जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 1 तो पॉजिटिव है, ये प्लस साइन है, बराबर है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसमें 1 पॉजिटिव है और ये एक्स स्क्वायर है. So both each and every term is positive. Okay, so here 1 upon x square is always positive. बराबर. सिर्फ x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते. इज ऑलवेज पॉजिटिव बट x नॉट इक्वल टू 0. सो 1 अपॉन x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x नॉट इक्वल टू 0. तो अगर 1 अपॉन x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो ये f डैश ऑफ x भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव.
So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to real number. All x belongs to real number. सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 0. कुछ समझा कि नहीं समझा? कुछ डिफिकल्ट है यहाँ पे? डिफरेंशिएट किया आपने, आपको क्या मिला? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिला, बराबर. जिसमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. ये 1 तो पॉजिटिव ही है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव. सिर्फ x 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0. तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव बन गया ना. पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर f dash of x is greater than 0 for all x belongs to real number but x not equal to 0. So just write down therefore f of x is an greater than 0 है तो कौन सा फंक्शन हो गया? Yes, is an increasing function. Is an increasing function for all x belongs to real number x not equal to 0. Any doubts? तो लग रहा है डिफिकल्ट? So let's start with question number 3. It is also pretty ordinary sum they have given. F of x 7 by x. Okay, 7 by x minus 3. 7 by x minus 3. Seven upon x minus 3. Okay, this is f of x for question number 3. F of x is equal to 7 upon x minus 3. First step simple, f dash of x first order derivative. 7 तो as it is रहेगा, 1 upon x का डेरिवेटिव क्या आएगा? minus 1 upon x square. और ये 7 तो क्या बनेगा? minus 7 upon x square. 3 क्या है? कांस्टेंट ना, तो डेरिवेटिव 0. 3 का डेरिवेटिव 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. देखो अभी क्या हो गया, आपको क्या मिला? f dash of x क्या मिला? minus 7 upon x square. समझा ना कैसे आया? 7 कांस्टेंट है, as it is रहेगा. 1 upon x का डेरिवेटिव क्या आएगा? minus 1 upon x square. चाहे तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्या आएगा? ये 7 है, 7 as it is. 1 upon x का डेरिवेटिव क्या आएगा? minus 1 upon x square minus 3 का डेरिवेटिव 0. So finally you will get f dash of x is equal to minus 7 upon x square. minus 7 upon x square हो गया. अब सिंपल सी बात है, ये minus 7 upon x square है. x square तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं है, x square तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. लेकिन उसे मल्टीप्लाई किसने किया है? ये x square डिवाइड है ना, बराबर है. ऐसे ही 1 upon x square is always positive. 1 upon x square पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसे मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? अभी -7 कर रहा है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा? हमेशा निगेटिव ही आएगा ना. अभी बात मेरी समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हियर -7 upon x square is always पॉजिटिव नहीं आएगा. अभी वो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव. is always negative and x not equal to 0. Are you getting it? समझे कि नहीं समझे? क्या हो गया था प्रीवियस सम में? क्या था? वो पॉजिटिव था सब, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस था ना सब. अब ये क्या दिख रहा है आपको? -7 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो भले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने दो, लेकिन ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर क्या आता है? हमेशा निगेटिव ही आएगा. समझे कि नहीं समझे? सो देयरफॉर -7 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव, x नॉट इक्वल टू 0. तो अगर ये हमेशा निगेटिव आने वाला है, निगेटिव मतलब लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, बराबर है. निगेटिव मतलब लेस देन 0. सो देयरफॉर f dash of x is less than 0 for all x belongs to real number but x not equal to 0. अगर ये लेस देन 0 आ रहा है f dash of x, तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, उसी का मतलब होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. सो यू कैन राइट नाउ देयरफॉर f of x is decreasing function, for all x belongs to real number and x not equal to 0. कोई डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी उसमें, बराबर. क्या क्या किया उसमें? आपने फंक्शन दिया था f of x, फिर आपने फाइंड आउट किया f dash of x, बराबर. अगर f dash of x में आपको
टर्म्स मिलते हैं, 2-3 टर्म मिलते हैं, तो आपने क्या किया, ब्रैकेट स्क्वायर लाने की कोशिश की, एज इन क्वेश्चन नंबर 1, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन 2 और 3 में तो बहुत सिंपल था, इजीली आपको मिल रहा था, वहां पे ब्रैकेट स्क्वायर लाने की जरूरत ही नहीं थी, इजीली आपको पता चल रहा था कि वो पॉजिटिव आ रहा है या कहीं पे निगेटिव आ रहा है। तो जब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जब एफ डैश ऑफ एक्स निगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. It's a very important question, board exam point of view. It's very important question. Question 2 and question 3. Okay, so just check it out. What are the steps mentioned in this question number 2? So the very important question is question number 2. Okay, here question is find the values of x such that f of x is increasing function. Find the values of x such that f of x is increasing function and they have given the function. Okay, now अब यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है ना, we don't have to check whether the function is increasing or decreasing. It's clearly mentioned that it is increasing. Now you have to find for which value of x it is increasing. बात समझ में आ रही? अब ये नहीं चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं है, बल्कि उन्होंने दिया आपको, उन्होंने बताया कि ये इंक्रीजिंग ही है, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए इंक्रीजिंग बन रहा है, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल है, जब हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, बस स्टेप्स थोड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। चलते हैं। नंबर 1, फंक्शन इज गिवन। ओके, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, क्वेश्चन है वहां पे f of x given, f of x is given as 2x cube minus 15x square, 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. This is our given function and we have to check for what values of x the function is increasing. क्लियरली मेंशन है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप सबको पता है फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, व्हेन f dash of x is greater than 0. अभी भी देखा, फंक्शन f of x will be increasing when f dash of x is greater than 0. Okay, so just find out f dash of x. So therefore f dash of x is equal to first order derivative 2 into x cube का क्या आएगा 3x square माइनस 15 x स्क्वायर का 2x प्लस 36 x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. ओके, सो हियर नाउ व्हाट विल गेट 2 3 6 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, सब में कॉमन क्या है 6, टेकिंग 6 कॉमन क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, 6. What about this bracket x square minus 5x plus 6? क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, और फैक्टर्स भी हो रहे हैं ना ब्रैकेट के, मालूम है ना फैक्टर्स, हाउ टू मेक फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन 6 एंड एडिशन 5, 2 and 3, तो क्या आएगा फैक्टर्स x minus 2 x minus 3. So this is all about f dash of x. तो f dash of x यहाँ तक तो मिल गया आपको। अब it is already given that the function is increasing. ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब f dash of x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0. ओके, सो जस्ट राइट डाउन सिंस f of x is increasing, f dash of x is always greater than 0. फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f dash of x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0. तो f dash of x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर। अब ये आंसर ग्रेटर देन 0 होने के लिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के लिए अब यहाँ पे आपको ये 6 दिख रहा है वो तो पॉजिटिव है,
ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, कहीं पे तो ब्रैकेट स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर होता तो भाई स्ट्रेट अवे वो तो पॉजिटिव होता, बराबर। तो अगर ये 0 चाहिए, हाँ, सो दैट इज 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, केस 1, ये मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट है ना, 6 तो पॉजिटिव, वो तो छोड़ दो, इन दो ब्रैकेट के बारे में सोचो, इनके बारे में पता नहीं है अभी तक आपको। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तभी होगा ना, मालूम है ना। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है ना, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, या फिर वो दोनों निगेटिव हो तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। समझ में आ रही है बात। आप सिर्फ क्या कहा गया है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स का ये वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तब, या फिर ये दोनों लेस देन 0 होंगे तब। समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आ रही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब वो दो नंबर्स पॉजिटिव हो। मतलब देखो, मैं 2 इंटू 3 किया तो आंसर क्या आया, 6, पॉजिटिव आया ना। लेकिन मैंने अगर -2 इंटू -3 किया तो भी आंसर क्या आएगा, +6 ही आएगा ना, -6 आएगा क्या आंसर, नहीं। बात समझ में आ रही है। मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आने के लिए या तो वो दो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए या फिर वो दो नंबर्स निगेटिव होने चाहिए। समझ में आ रहा है, मैं क्यों ये रिपीट कर रहा हूं बार बार, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ गया, सब खेल खत्म। यही नहीं समझा, कुछ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो देयरफॉर नाउ we have to show that both the brackets are greater than 0. So case 1, x minus 2 is greater than 0 and x minus 3 is greater than 0. So therefore ये minus 2 वहां पे जाके plus, therefore x is greater than 2 and x is greater than 3. अब देखो, इसमें बोला x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, उसमें बोला x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। इसमें से एक ऐसा कंडीशन है जो अगर हम रखते हैं तो दूसरा कंडीशन उसमें कवर हो जाता है। क्या बोला, समझा क्या? दो कंडीशन है ना, एक क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा आना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 3 से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जो अगर मैं रखूं तो उसमें अपने आप दूसरा कंडीशन भी आ जाता है? वो समझ में आ रहा है? सोचो, नहीं बताओ। अगर मैं ये कंडीशन रखूं x ग्रेटर देन 3, x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, बराबर, तो उसमें कौन सा वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 3 से ज्यादा, तो कौन सा वैल्यू आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, बराबर है, आएगा ना। वो सभी वैल्यू x ग्रेटर देन 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, सोचो। इफ आई टेक दिस कंडीशन x ग्रेटर देन 3, मैं अगर x ग्रेटर देन 3 के बारे में सोचूं, मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा ले लूं मैं, 3 से बड़ा मतलब 3.5 भी ले सकता हूं मैं, 3.8 भी ले सकता हूं, 3.9 भी ले सकता हूं। ये सभी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर देन 2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब जब मैं ये कंडीशन लिखता हूं तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन लेके चलूं x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 से बड़ा मतलब 2.5 भी आ सकता है ना। x ग्रेटर देन 2 मतलब x का वैल्यू 2.5 भी ले सकता हूं। तो लेकिन अगर मैं x का वैल्यू 2.5 ले लूं तो यहां पे वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। 2.5 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? नहीं होता है ना। बात समझ में आ रही है?
मतलब इन दोनों में से ये कंडीशन अगर लिया जाए तो ये कंडीशन उसमें कवर हो जाता है. क्लियर? सो देयरफॉर जस्ट वी हैव टू टेक ओनली वन फ्रॉम बोथ. दोनों में से एक लेना है आपको. सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3. एक ही कंडीशन लिया. क्लियर हो रहा है आपको? x इज ग्रेटर देन 3. 3 से बड़ा चाहिए x का वैल्यू. हो गया. अब केस 2. ये हो गया आपका केस 1. केस 1 से आपको x का क्या वैल्यू मिला? ग्रेटर देन 3. केस 2. अब केस 1 में क्या किया था हमने? दोनों को पॉजिटिव दिखाया था क्योंकि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए था ना. अब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखाने के लिए दोनों को क्या दिखाएंगे? निगेटिव दिखाएंगे. निगेटिव मतलब लेस देन 0. तो केस 2 आएगा x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x माइनस 3 लेस देन 0. सो देयरफॉर x माइनस 2 वहां पे जाके प्लस x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 3. अब जरा सोचो, एक में बोला x का वैल्यू 2 से कम चाहिए, एक में बोला x का वैल्यू 3 से कम चाहिए. कौन सा ऐसा कंडीशन है जो दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? अब सोच सकते हो ना, यहाँ पे हमने बताया ना कैसे सोचना है. एक में क्या बोला? x का वैल्यू 2 से कम चाहिए और दूसरे में क्या बोला? x का वैल्यू 3 से कम चाहिए. समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हम ये कंडीशन यूज करें x इज लेस देन 2 तो आपका काम बन जाएगा. x का वैल्यू अगर आप 2 से कम लेते हो, 2 से कम मतलब आप 1 ले सकते हो, 2 से कम मतलब आप 1.5 ले सकते हो, बराबर है, 1.8 ले सकते हो. ये सभी वैल्यू 3 से कम होगा कि नहीं होगा? बराबर ना. जब आप x का वैल्यू 2 से कम लोगे तो बट ऑब्वियस है वो सभी वैल्यू 3 से भी तो कम होगा ही, बराबर. लेकिन अगर आप x का वैल्यू 3 से कम लेते हो, 3 से कम मतलब फिर से 2.5 भी आ सकता है ना, तो वो 2.5 2 से कम आएगा क्या? नहीं आएगा. बात समझ में आ रही है? मतलब अब ये कंडीशन x लेस देन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आएगा x लेस देन 2. बात समझे? तो केस 1 से हमें क्या मिला? x का वैल्यू 3 से ज्यादा वाला चाहिए और केस 2 से क्या मिला? x का वैल्यू 2 से कम वाला चाहिए. ये सब समझे आपको? क्या क्या किया? फंक्शन दिया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, 6 कॉमन लिया, फैक्टर्स किया. अब आपको क्या बताया गया है? ये फंक्शन क्या चाहिए? इंक्रीजिंग. तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है. f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये f डैश ऑफ x का वैल्यू है, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए. ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव चाहिए. तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों पॉजिटिव हो तब. तो केस 1 में दोनों पॉजिटिव दिखाया, ग्रेटर देन 0. और कब आता है मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव? जब दोनों नेगेटिव हो. तो केस 2 में दोनों क्या दिखाया? नेगेटिव. ये इक्वेशन 1 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला. So now just we have to write the final answer. So therefore where should I write? Okay, they have asked question no? From case 1 and 2 f of x is increasing और वैल्यूज. कौन सा वैल्यू दिया था? इफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड दो केस है ना, और ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 2. इफ x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 2, सो देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग for x belongs to greater than 3. 3 से ज्यादा. 3 से ज्यादा मतलब कितना मालूम नहीं है ना, मतलब अप टू इंफिनिटी. सो 3 से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा पता नहीं है, मतलब इंफिनिटी. when x belongs to 3, इंफिनिटी और मतलब यूनियन, और x belongs to हाँ क्या आएगा फिर? लेस देन 2 ना, 2 से कम मतलब 2 से कम मतलब कितना है? 0 1
2 से कम ना, 1 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो शुरू कहाँ होगा पता नहीं, पर खत्म कहाँ होने वाला है 2 पे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी, मतलब एक्स का वैल्यू 3 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। और के लिए यूनियन, यूनियन का साइन मतलब और एक्स का वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। आर यू गेटिंग इट? सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझा? डिफिकल्ट है? तो इसी फॉर्मेट से आपको सब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करना है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग उसमें से आई विल ट्राई थर्ड वन एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट मी ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस क्वेश्चन। प्रीटी ऑर्डिनरी, सेम फॉर्मेट है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा अभी, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट नंबर एंड कैलकुलेशन बदलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फ्रॉम दैट 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व सब क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब क्वेश्चन 2 दैट यू हैव टू सॉल्व, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन दिया है वो, x² + 2x - 5, second one that you have to try. Third one, in this case they are given f of x is given, f of x given function f of x is 2x³ minus 15x² minus 144x minus 7, 144x minus 7. Okay, this is f of x, value for f of x is given. Same. Now question is what? Function is increasing, and now for what values of x it is increasing, that we have to check. Function तो increasing है, अब कौन से वैल्यू के लिए वो इंक्रीजिंग है उतना ही आपको चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, as usual, f dash of x. So therefore f dash of x, first order derivative 2 into x³ का क्या आएगा 3x² minus 15, what about x² 2x minus 144, what about x 1, और 7 का क्या आएगा 0. So finally you will get f dash of x equal to 2 3s are 6x² minus 30x minus 144. 6, 30, 144. What is common? Yeah, 6. Taking 6 common, you will get x² minus 5x minus 24. अब फिर से ये क्वाड्रेटिक है, बहुत ही सिंपल है, फैक्टर्स भी इजी है, मल्टीप्लीकेशन 24 और सब्ट्रैक्शन 5, 8 and 3, तो क्या आएगा 6 into x minus 8 x plus 3. So this is f dash of x. ये हो गया आपका f dash of x. अब आपको फंक्शन क्या चाहिए, यू वांट फंक्शन इंक्रीजिंग ना, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब मिलता है, बराबर है। सो f of x इज इंक्रीजिंग कब, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा ग्रेटर देन 0। f of x इज इंक्रीजिंग if f dash of x is greater than 0। जब f dash of x क्या होगा greater than 0 होगा, तो आपका फंक्शन क्या आएगा इंक्रीजिंग आएगा। तो f dash of x का ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या चाहिए greater than 0। so therefore 6 into x minus 8 into x plus 3 greater than 0। तो अभी देखा हमने, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है, यस व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सो केस 1 एंड केस 2, केस 1, सो इन केस 1 बोथ आर पॉजिटिव, x minus 8 greater than 0 and x plus 3 greater than 0। So therefore x is greater than -8 वहां पे जाएगा +8 and x greater than +3 वहां पे जाएगा -3। तो देखो कौन सा कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक में लिखा है x का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 8,
और दूसरे में लिखा है ग्रेटर देन -3, तो ऑब्वियस है जो 8 से बड़ा होगा वो -3 से भी तो बड़ा ही होगा ना भाई, समझ में आ रहा है ना। तो ये कंडीशन उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, so therefore you can write x is greater than 8. This is condition 1. हो गया। Now case 2, केस 2 में क्या करना है, दोनों नेगेटिव दिखाना है ब्रैकेट, मतलब लेस देन 0। सो x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0। सो देयरफॉर x इज लेस देन -8 वहां पे जाके प्लस लेस देन 8 एंड x प्लस 3 वहां पे जाके माइनस। तो इसमें क्या बोला है, x का वैल्यू 8 से कम लेस देन 8 चाहिए, और उसमें क्या बोला, x का वैल्यू -3 से कम होना चाहिए। तो सिंपल है, जो -3 से कम है वो 8 से भी तो कम ही होगा, मतलब ये कंडीशन इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या आएगा, देयरफॉर x इज लेस देन -3। ये हो गया नंबर 2। हो गया, तो या तो x ग्रेटर देन 8 होगा या फिर x लेस देन -3 होगा। आर यू गेटिंग इट? तो फाइनल आंसर सिर्फ लिखना है आपको। समझा ये सब स्टेप्स? फंक्शन f dash of x factors increasing, therefore f dash of x greater than 0, f dash of x greater than 0, that means both brackets are positive greater than 0 or both brackets are negative less than 0. Clear? Okay, so now you can write from case 1 and 2 f of x is increasing, वैल्यूज क्या दिया है, if x is greater than 8 और x is less than -3, या तो 8 से बड़ा होना चाहिए या फिर -3 से कम होना चाहिए। सो देयरफॉर f of x is increasing for, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, 8 से बड़ा है ना, 8 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा वो, अप टू इन्फिनिटी। फॉर x बिलोंग्स टू 8 अप टू इन्फिनिटी, और मतलब क्या, यूनियन, या फिर और भी लिख सकते हो, यूनियन x बिलोंग्स टू -3 से कम। -3 से कम मतलब कहां से शुरू होगा पता नहीं है ना, तो -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, लेस देन -3 ना, मतलब खत्म कहां पे होगा, -3 में, और -3 से कम मतलब शुरू कहां पे होगा पता नहीं है, तो क्या आएगा, -इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। just question number 2 remains there that you have to solve. okay, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बाकी है वो आपको सॉल्व करना है इंक्रीजिंग में। क्लियर हो गया इंक्रीजिंग का? तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको x का वैल्यू बताना है, f of x इंक्रीजिंग फॉर विच वैल्यूज ऑफ x, x के कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा रिवर्स होगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग के बारे में पूछा था, उस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग के बारे में पूछा। ओके, सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन दैट क्वेश्चन नंबर 3 they have given a function and we have to find values of x for which function is decreasing. Find the values of x such that f of x is a decreasing function. Okay, so let's start with that question. Question number 3. Now functions are given and we have to find values of x for which that function is decreasing. Okay, same format, given f of x. Now given function is 2x cube minus 15x square. Same function they have given, minus 144x minus 7. Okay, just now we have solved in increasing. Okay, so same function is given. अभी तो सॉल्व किया ना इंक्रीजिंग के लिए, वही सेम फंक्शन अभी डिक्रीजिंग के लिए दिया है, वही सेम कंसेप्ट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या होगा पहला,
डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स 2, अभी भी क्या ना, बताओ जल्दी क्या आएगा 3x², हाँ -15 x स्क्वायर के लिए 2x, यस, -144 x के लिए 1, -7 के लिए 0, वेरी गुड. सो द फाइनल यू विल गेट, हाँ 2 3 6x², then -30x -144. What is common? 6. Taking 6 common, what you will get? x², then -5x, then -24. 6. Now it's a quadratic. Factors होंगे, अभी भी किया. 8 3 24. तो क्या आएगा? x -8 x + 3. ओके, ये सब कुछ रिपीट हो गया ना, अभी भी किया था हमने. दिस इज f' of x. Okay, in last sum we have studied for increasing. Now this is for decreasing. So here we have to write, now f of x is decreasing function if f' of x is less than 0. ये decreasing कब होगा? जब f' of x क्या होगा? less than 0 होगा. तो ये f' of x का वैल्यू है, वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0. ओके, सो देयरफॉर 6 into x - 8 into x + 3 मस्ट बी लेस देन 0. अब ये 6 तो पॉजिटिव है, इसका तो बात छोड़ दो. ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है ना, वो पॉजिटिव है निगेटिव है पता नहीं है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना पता है ना. अब इनका मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आना चाहिए ना, लेस देन 0 मतलब मल्टीप्लीकेशन निगेटिव. तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव कब आता है? यस, जब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा. बात समझ में आ रही है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? निगेटिव. कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक निगेटिव. बट किसे पता है कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? पता है आपको? पता है क्या ये पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव है? पता है नहीं ना, तो फिर आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो एक केस में क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव सेकंड ब्रैकेट निगेटिव ले लेंगे, और दूसरे केस में फर्स्ट ब्रैकेट निगेटिव सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव. आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? अब आपको प्रोडक्ट क्या करना है? निगेटिव दिखाना है. तो प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा? जब एक ब्रैकेट पॉजिटिव और दूसरा ब्रैकेट निगेटिव आएगा. तो लिखेंगे केस 1, बराबर. केस 1 में फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, x - 8 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड second bracket negative, x + 3 less than 0. So therefore x greater than 8, बराबर. -8 वहां पे जाके +8 and x + 3 वहां पे जाके माइनस. मतलब x का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू -3 से कम होना चाहिए. होगा कभी ऐसा? x ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, उसी वक्त वो बोल रहे हैं x लेस देन -3 होना चाहिए. कभी ऐसा होगा कि वो वैल्यू -3 से कम भी होना चाहिए और 8 से ज्यादा भी होना चाहिए? ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कोई वैल्यू है जो ग्रेटर देन 8 है और जो लेस देन -3? पॉसिबल नहीं है. तो आप लिखेंगे विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन. ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, मतलब फॉल्स है, ऐसा होगा ही नहीं, बराबर. तो ऐसा हो नहीं सकता. तो ये कंडीशन फॉल्स है. इसका मतलब सही मायने में क्या होता है कि ये जो केस है ऐसा केस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव सेकंड को निगेटिव अज्यूम करके चले तो हमें ये मिला कंडीशन कि भाई x का वैल्यू मतलब जो वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए और -3 से छोटा होना चाहिए. ऐसा कोई वैल्यू मिलता ही नहीं है कि जो 8 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो. सो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन. अब जाते हैं केस 2 की तरफ. केस 2. अब केस 2 में सिंपल सी बात है. अब इसको हमने पॉजिटिव लिया था, अब इसे क्या करेंगे? निगेटिव. x - 8 लेस देन 0 एंड अब इसे करेंगे पॉजिटिव, x + 3 ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर x इज लेस देन -8 वहां पे जाके +8 एंड x इज ग्रेटर देन +3 वहां पे जाके -3. मतलब सिंपल अभी दिख रहा है आपको, x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए एंड x इज लेस देन 8 से छोटा. मतलब x का वैल्यू कैसे चाहिए? 8 से छोटा चाहिए और -3 से बड़ा चाहिए. आर यू गेटिंग इट? सो देयरफॉर x का वैल्यू किससे बड़ा चाहिए? -3 से बड़ा चाहिए ना.
तो यहाँ पे -3 आएगा, और 8 से छोटा चाहिए तो ऐसे आएगा। हो गया कंडीशन। x शुड बी बिटवीन -3 to 8। क्लियर? इज दैट क्लियर? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। केस 1 केस 2 समझा। अब यहाँ पे क्या चाहिए था? मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है? एक केस में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट पॉजिटिव, एक ब्रैकेट नेगेटिव। दूसरे केस में उल्टा करेंगे, जिसे पहले केस में पॉजिटिव दिखाया उसे नेगेटिव दिखाएंगे, जिसे नेगेटिव दिखाया उसे बाद में पॉजिटिव दिखाएंगे। क्लियर है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ पता चला आपको? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब रॉन्ग, गलत। क्यों हुआ? फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है ये? बिकॉज क्या बोला? ग्रेटर देन 8 चाहिए और लेस देन -3। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ग्रेटर देन 8 हो और लेस देन -3। क्लियर? तो एट द फाइनल स्टेज आपको लिखना पड़ेगा, so therefore f of x is decreasing से पहले f dash of x का लिखना था ना आपको। therefore f dash of x is less than 0 if -3 is less than x is less than 8. So therefore f of x is decreasing for x belongs to -3 से लेकर 8 तक ना। अभी आपको इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है -3 से लेकर 8 तक जाना है। So therefore f of x is decreasing for x belongs to -3, 8. Is that clear? कुछ डिफिकल्टी, कुछ डाउट लग रहा है आपको इसमें? So let's solve one more sum so that it will be clear to you. 4.2. Which one sum is decreasing? Third, second. Which one should I try? Question number 3. So question number, this is first one, na? 2. Let me try question number 2. Okay. Because power is more, x raised to 4 is given. Okay. Question number 2 from this question. Okay, here given f of x. Now power is more, x raised to 4. X raised to 4 minus 2x cube plus 1. X raised to 4 minus 2x cube plus 1. This is the function. So first step very simple. F dash of x. F dash of x equal to x raised to 4. 4x cube minus 2x cube 3x square plus 1 का क्या आएगा? 0. So finally you will get 4x cube minus 6x square. What is common? दोनों में common क्या है आपको दिख रहा है? x स्क्वायर कॉमन है और 2 से डिवाइडेड, तो 2x स्क्वायर कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे? 2x माइनस 3 x square common, 2 to the 4, 2 3 the 6, so 2x square is common, so here you will get 2 and x, and here you will get 3. So this is value for f dash of x. अब ये क्या चाहिए आपको? डिक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। So therefore f of x is decreasing if f dash of x is less than 0. ये कब डिक्रीजिंग होगा? जब f dash of x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। अब ये f dash of x का वैल्यू है ना, तो f dash of x में ये x स्क्वायर है ना, वेरिएबल है, बराबर। अब आप x तो कंसिडर कर नहीं सकते, ये जो वैल्यू है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए ना, लेस देन 0। तो x का जो वैल्यू है ये ऑलरेडी x स्क्वायर है। x स्क्वायर मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, और आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये ऐसे आएगा। चलो 2x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0 आना चाहिए, बराबर। अब इसमें ये 2 पॉजिटिव है और ये x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो सवाल ही नहीं है ना, ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि ये x स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिर्फ कौन सी ब्रैकेट रहती है? ये ब्रैकेट। मतलब अगर ये ब्रैकेट निगेटिव होगी तो ही ये आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? 2x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो बची कौन सी ब्रैकेट? 2x माइनस 3, तो ये ब्रैकेट क्या आनी चाहिए? निगेटिव आनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सो हियर
2x square is greater than 0. Okay, always, which is always positive. या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2x square is always positive. Here 2x square is always positive, so therefore only one condition remains. कौन सा कंडीशन? तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन निगेटिव लाना है और जिसमें से ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो फिर बचा हुआ टर्म कंपल्सरी क्या आना चाहिए? नेगेटिव. सो देयरफॉर 2x minus 3 less than 0. तो 2x minus 3 less than 0 है तो 2x is less than minus 3 वहां पे जाके plus 3. So x is less than 2 multiply वहां पे जाके divide. मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए? 3/2 से कम आना चाहिए. अब 3/2 से कम मतलब कितना? वो तो दिया नहीं है ना. 3/2 से कम मतलब कितना दिया नहीं है, मतलब अप टू माइनस इन्फिनिटी हो गया. सो देयरफॉर लिख सकते हो आप देयरफॉर f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 इफ x is less than 3/2. f dash of x is less than 0 if x is less than 3/2. So therefore f of x is decreasing. f of x is decreasing for x belongs to minus infinity to 3/2. समझे? x लेस देन 3/2 बोला है ना, मतलब 3/2 से कम चाहिए. कम मतलब कितना पता नहीं है ना, इसलिए माइनस इन्फिनिटी. और खत्म कहाँ पे होगा? 3/2 में. सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/2. ओके, ओनली वन सम इज रिमेनिंग फ्रॉम दैट क्वेश्चन. ओके, 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. I think you can do it on your own. Okay, so here we have completed exercise 4.1 and exercise 4.2 from chapter number 4, that is application of derivatives. So just go through all sums, each and every sum. Very easy sums are there and repeated steps are there. Just they have changed numbers. थोड़ा बहुत नंबर को चेंज किया, बाकी सब स्टेप्स सिंपल है, रिपीटेड स्टेप्स है, सेम फॉर्मेट है. 2 बार 3 बार अगर सॉल्व करोगे तो वो आप परफेक्ट हो जाओगे. इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन thanks for watching this video. Keep watching and keep solving, keep practicing.